بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کا ٹیچر محمد عباس اور میرا یوٹیوب چینل ہے مہر عباس ایجوکیشن ٹیوب میتھ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ السلام علیکم۔ میتھمیٹکس 9th کلاس اور یونٹ ہے 2 کمپلیکس اور ریئل نمبر سے متعلقہ ہے۔ اس کی ہماری آخری ایکسرسائز یعنی ایکسرسائز 2.6 اس کے جو پہلے 6 کویسچنز ہیں ان کے لیکچرز ویڈیو کی صورت میں آپ کو مل چکے۔ ان لیکچرز کو آپ یوٹیوب پر ریاضی نحم یا ریاضی دہم RIAZI ریاضی NAHM نحم لکھ کے سرچ کریں گے تو بہت ساری ویڈیوز آئیں گی۔ مہر عباس ایجوکیشن ٹیوب میتھ پر کلک کر دیں یا وہاں ایک تصویر بنی ہوگی وہاں کلک کر دیں تو میرا چینل کھل جائے گا۔ چینل کا نام ہے مہر عباس ایجوکیشن ٹیوب میتھ۔ ایکسرسائز 2.6 اس کا آخری کویسچن نمبر 7 رہ گیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ ایکویشنز آپ کو دے دی گئی ہیں اور ان ایکویشن سے آپ نے ایکس اور وائی کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ کویسچن نمبر 7 پہ غور کریں تو لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل مساواتوں کو ایکس اور وائی میں حل کریں۔ مطلب کیا؟ مساواتیں دے دی جائیں گی، ایکویشنز دے دی جائیں گی، اس میں ویریبلز اور نمبرز ہیں، کمپلیکس بھی ہیں اور ریئل بھی ہیں۔ ہم نے ان کو سادہ کرنا ہے اور اس کے بعد ایکس اور وائی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے۔ تو یہ ویلیو کیسے فائنڈ کرنی ہے؟ پہلا پارٹ ہے انٹو 2 - 3 آئیوٹا انٹو ایکس پلس وائی آئیوٹا برابر ہے ایکول ہے 4 پلس آئیوٹا۔ 2 - 3 آئیوٹا ضرب ایکس جمع وائی آئیوٹا برابر ہے 4 جمع آئیوٹا۔ آئیوٹا کمپلیکس نمبر ہے۔ کیسے حل کرنا ہے غور کیجئے گا۔ یہ جو 2 - 3 آئیوٹا ہے یہ ایکس پلس وائی آئیوٹا سے ملٹیپلائی ہوگا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے 2 کو ایکس پلس وائی آئیوٹا سے ملٹیپلائی کریں گے، پھر -3 آئیوٹا کو ملٹیپلائی کریں گے تو لکھیں گے 2 انٹو ایکس پلس وائی آئیوٹا۔ یہ 2 کو ہم نے کیا کر دیا؟ ایکس پلس وائی آئیوٹا سے ملٹیپلائی کیا۔ اس کے بعد ہے -3 آئیوٹا ہے، اس کو بھی کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے؟ ایکس پلس وائی آئیوٹا سے۔ دوسری طرف لکھا ہوا ہے 4 پلس آئیوٹا۔ اب ہم اس 2 کو اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکس کے ساتھ اور وائی آئیوٹا سے، پھر -3 آئیوٹا کو اندر ایکس پلس وائی آئیوٹا سے ملٹیپلائی کریں گے۔ تو جب 2 کو ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2x پلس 2y
आयोटा। अब -3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा -3 फिर x और फिर आयोटा। आगे ये जो माइनस है इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 3 1 3, 3 उसी तरह, y उसी तरह, और ये बाहर भी आयोटा है अंदर भी आयोटा है, ये आयोटा का स्क्वायर हो गया। राइट साइड पे वही 4 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, जो आयोटा वाले नंबर्स हैं उनकी अलहदा इक्वेशन और जो आयोटा के बगैर हैं उनकी अलहदा इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास है 2x -3y आयोटा स्क्वायर इक्वल है 4 के। आप कहेंगे ये तो आयोटा इधर लिख दिया। अब हमें पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर बराबर -1 है, यहाँ से आयोटा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वो है -3x आयोटा प्लस 2y आयोटा बराबर है आयोटा के। आयोटा क्या है, ये लैटिन और ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में से एक हरफ है। लो जी, ये बन गया हमारे पास 2x -3y और आयोटा का स्क्वायर -1 इक्वल टू 4। और इधर हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा ले लिया कॉमन, अंदर आ गया 3x प्लस 2y इक्वल है आयोटा के। यानी लेफ्ट साइड से हमने आयोटा कॉमन ले लिया है। अब आयोटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल हो गया, ये वाला आयोटा तो पहले का है, इधर जो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर गया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3x प्लस 2y, सॉरी ये माइनस अंदर आएगा क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन नहीं लिया है, ये माइनस आएगा, इक्वल टू आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। जब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब सारे नंबर कैंसिल होते हैं तो 1 आया करता है। ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। ये एक इक्वेशन है, इसको भी हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस और माइनस प्लस 3y इक्वल है 4 के। ये एक इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है -3x प्लस 2y इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को भी इधर लिखते हैं माइनस के 3x प्लस के 2y और किसके इक्वल है, 1 के। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4,
और दूसरी इक्वेशन क्या है, -3x + 2y = 1। इसको हम हल करेंगे। अब हल किस तरीके से करना है, बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको मैं बताता हूं कि सबसे आसान कौन सा है जी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस क्या आ चुकी हैं, 2x + 3y = 4 है, -3x + 2y = 1 है। तो वैसे तो इन इक्वेशंस को, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोफिशिएंट इक्वल करके हल कर सकते हैं, आप एक इक्वेशन से वैल्यू x या y की फाइंड करके फिर हल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले से हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको मशवरा दूंगा सबसे आसान तरीका, और फ़ायदा भी डबल होगा, वो है क्रैमर रूल। उसने पाबंदी थोड़ा ही लगाई है कि आपने फ़लाँ तरीके से हल करना है। तो क्रैमर रूल सबसे आसान है। हम मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं जी। मैट्रिक्स ए क्या होता है, कॉलम ए क्या है, ये x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं, अदिशर होते हैं। ये लिखा जाएगा 2 3, ये -3 और फिर 2। ये हमने मैट्रिक्स ए बना लिया। इस तरह ना वो पहला यूनिट है ना, उसकी एक्सरसाइज 1.6 वो रिपीट भी हो जाएगी। ax, ये दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके लिए x की वैल्यू के लिए ये बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे, x जो इक्वेशन के अंदर है इसको दबा लेंगे और यहाँ जो b वाले मेंबर्स हैं 4 और 1 वो लिखे जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 4 और 1, y चूँकि बाद में है और उनके कोफिशिएंट 3 और 2 हैं, 3 और 2 उसी तरह लिख दिया हमने। और ये x भी बन गया। इसके बाद ay क्या है, अब x के कोफिशिएंट उसी तरह ही लिखने हैं। वो क्या है, 2 है और -3 है। y की जगह b वाले मेंबर यानी 4 और 1, 4 और 1। तो ये हमने क्रैमर के रूल के मुताबिक 3 मैट्रिक्स बना लिए। ए की वैल्यू के लिए यानी ए के डिटर्मिनेंट के लिए, ए एक्स के डिटर्मिनेंट के लिए और ए वाई के डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट बराबर है 2 3 -3 और 2। ये डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। इसको हम खोलते हैं जी, फार्मूला AD - BC वाला। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फार्मूले वाला है, और 3 मल्टीप्लाई होगा यानी ये वाला 3 -3 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ गया, और माइनस ये भी अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9 हो गया। तो 4 और 9 को ऐड करें तो हमारे पास 13 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 13। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं जी। ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट बराबर जी, ए एक्स है 4 3, 4 है, 3 है, 1 और 2 है। ये मैट्रिक्स लिखा हुआ 4 3 1 2।
अब इसको भी हल करते हैं, वही फार्मूला AD माइनस BC। तो 4 किसे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, माइनस फार्मूले के मुताबिक 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई करें तो 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, और माइनस 3 1 दा 3, 3 एकम 3। 8 में से 3 माइनस करने से हमारे पास आ जाता है 5। तो इस तरह हमने AX की कीमत भी फाइंड कर ली। अब आगे है हमारे पास AY, तो AY को भी फाइंड करते हैं। A बड़ा, कोने पे Y लिखा और इसका क्या ले लिया डिटर्मिनेंट मकता। 2 4 माइनस 3 1, 2 है, 4 है, माइनस 3 है, और 1 है। इसको हल करना है, वही फार्मूला AD माइनस BC। एक ही जगह पे क्या है 2 है, इंटू 1 माइनस BC क्या है 4, और C की जगह माइनस 3 है। ये इक्वल हो गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 2 ही आ गया, ये माइनस है माइनस और माइनस प्लस, कितना हो गया 4 3 दा 12 यानी 12। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ गया है जी 14 यानी 14। तो ये तीनों कीमतें हमारे पास आ चुकी, किसकी, A के डिटर्मिनेंट की, AX का डिटर्मिनेंट और AY का डिटर्मिनेंट। अब इन तीनों डिटर्मिनेंट से हमने X और Y फाइंड करना है जी। तो अब X की कीमत के लिए X इक्वल हो गया AX का डिटर्मिनेंट और इसके बटे में आ गया A का डिटर्मिनेंट। इसी तरह Y की कीमत के लिए Y इक्वल है Y का डिटर्मिनेंट और ओवर में A का डिटर्मिनेंट। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। X इक्वल हो गया हमारे पास, AX हमारे पास आया है 5, लिख दिया, और A का डिटर्मिनेंट कितना है जो हमने फाइंड कर रखा है वो है 13। तो X की वैल्यू क्या निकल आई है 5/13। X की वैल्यू क्या है 5/13 है। अब Y इक्वल है AY की वैल्यू निकली है 14 और ओवर में A का डिटर्मिनेंट वो है 13। तो इस तरह हमारे पास X की वैल्यू 5/13 और Y की वैल्यू 14/13 आ गई है। और यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी कोशिश करें कि X और Y की कीमत मालूम करने के लिए पहले इक्वेशंस को सादा करें और फिर
कोशिश करें क्रैमर रूल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो यूनिट नंबर 1 है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और मक्ता, वहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन 1.6 से आता है वो क्रैमर रूल से मुतल्लिका ही होता है। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, यानी 2 in 1 वाली बात हो जाएगी। जी दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो इसको हल करके फिर दो इक्वेशंस बनाते हैं। पहले जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई आयोटा से, यानी ये वाला जो 3 है एक्स प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, अब -2 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, राइट साइड पे 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला 2 जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 2x माइनस 2 टू द 4 वाई आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस 1। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3x आ गया प्लस 3 वाई आयोटा आ गया, -2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये हुआ -2x आयोटा। अब यही -2 आयोटा प्लस वाई आयोटा से, तो माइनस है प्लस है माइनस ही आएगा, ये 2 ही आएगा, y उसी तरह, बाहर भी आयोटा है अंदर भी, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब इनको स्वाय नंबर्स के x और y को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, माइनस का 2x और प्लस का 4y आयोटा इक्वल किसके 2 आयोटा माइनस 1। अब हम जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनकी अलहदा इक्वेशन बनाते हैं, और जो कम्प्लेक्स नंबर के बगैर रियल नंबर्स हैं उनकी अलहदा। ये 3x माइनस 2x हो गया, ये 3x है, ये माइनस 2x है। ये जो है ना माइनस का 2y आयोटा स्क्वायर, ये भी सिंपल नंबर रियल नंबर बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आयोटा तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -2y इंटू -1 किसकी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर। ये भी आयोटा के बगैर हो गया, और राइट साइड पे आयोटा के बगैर है -1, वो हमने लिख दिया। ये एक इक्वेशन बनाएंगे, और दूसरी इक्वेशन के लिए हम देख रहे हैं कि माइनस के 2x आयोटा है, माइनस के कितने हैं 2x आयोटा है, कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है, प्लस के 3y आयोटा और प्लस के 4 कितने हो गए, प्लस के 7y आयोटा आ गया। ये तो लेफ्ट साइड थी, राइट साइड में फिर क्या रह गया 2 आयोटा रह गया। इन इक्वेशंस को दोनों को मज़ीद हम सादा करते हैं, और फिर दो इक्वेशन बना के वही क्रैमर रूल से हल करेंगे। जी 3x में से 2x माइनस करें तो हमारे पास आ गया x माइनस के 2y अंदर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2y हो गया, और ये इक्वल है -1 की। ये इक्वेशन बन गई एक। दूसरा जी यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं,
जब आयोटा कॉमन लिया तो अंदर आ गया माइनस का 2x प्लस 7y इक्वल है 2 आयोटा के। अब ये जो आयोटा है ना, इसको यहाँ ही कैंसिल कर सकते हैं। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगा, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो आ गई है वो है -2x प्लस 7y इक्वल है 2 के। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस बन गई हैं, पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस 7y इक्वल है 2 के। तो इन दोनों इक्वेशंस को भी हम पहले इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में यानी कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे और फिर इनको हल कर देंगे क्रैमर रूल से। तो फिर हमारे पास ए क्या आ गया, ए हमारे पास आ जाएगा कॉलम x का कोएफिशिएंट अधिसार 1 है, फिर दूसरे x का -2 है, फिर y का 2 है और y का 7 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A बन गया। अगला मैट्रिक्स है AX। चूँकि इसको x के लिए हल करना है, ये इसको दबा लिया जाएगा, इसकी जगह ये b वाले मेंबर आएंगे -1 और 2। तो पहले चूँकि x के लिए जो हल करना है तो मेंबर कौन से आएंगे, b वाले। वो क्या हैं, -1 और 2। तो y के कोएफिशिएंट 2 और 7 उसी तरह, 2 और 7 उसी तरह आ गए। फिर इसके बाद है हमारे पास AY बनाना, ये इक्वल हो गया। क्योंकि y मालूम करना है, x के कोएफिशिएंट 1 और -2 तो उसी तरह आएंगे, 1 -2 उसी तरह। अब y की जगह क्या आएगा, ये y की जगह ये b वाले मेंबर -1 और 2 आ जाएंगे। तो क्या लिखा, -1 और 2। तो ये तीसरा मैट्रिक्स AY आ गया। यहाँ से हमने अब A का डिटर्मिनेंट, AX का डिटर्मिनेंट और AY का डिटर्मिनेंट, यानी AX और AY का हमने मक्ता मालूम करना है। तो पहले A का मक्ता मालूम करते हैं। A का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट, उर्दू में मक्ता का नाम देते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट। तो पहला काम क्या होता है, दिए गए कॉलम को, दिए गए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की शक्ल देनी होती है। 1 2 -2 और 7। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, AD - BC। A क्या है 1 और D क्या है 7, माइनस B की जगह पे 2 है और C की जगह पे -2 है। इनको हल करें तो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 ही आ गया। ये बाहर माइनस है, 2 के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 2 दा 4, 7 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है जी 11। अब A का डिटर्मिनेंट कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। इसको इस्तेमाल करेंगे अब हम
ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे जी। तो ए के डिटर्मिनेंट के बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, दूसरी तरफ ए एक्स के मेंबर्स हैं हमारे पास -1, फिर 2, फिर 2 और 7, ए डी माइनस बी सी। ए क्या है? -1 है, तो -1 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस फार्मूले का होता है, इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 इंटू 2 हो गया। अब इसको आगे हल करें तो -1 7 से मल्टीप्लाई होगा, -7 आ गया, माइनस बाहर है, 2 टू द 4 माइनस के 4 होगा। तो इस तरह हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है -7 और माइनस के 4 माइनस के 11। इसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो ए वाई मैट्रिक्स क्या है? 1 -1, फिर -2 और 2, फार्मूला वही ए डी माइनस बी सी। ए क्या है? 1, डी क्या है? 2, माइनस फार्मूले का, बी क्या है? -1 है, और सी क्या है? -2 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2, माइनस एक दफ़ा, 2 दफ़ा, और 3 टाइम्स माइनस है तो माइनस आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आ गया, 2 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास 0 आ गया। इस तरह ये वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड करना है जी एक्स, एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और बटे में ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ लिखते हैं। ए एक्स हमारे पास कितना है? -11। ए एक्स कितना है? -11 है, और ए का डिटर्मिनेंट हमने वो है 11। तो 11 और 11 तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये रह जाता है -1। एक्स हमारे पास कितना आ गया है? -1 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या निकली है? -1 आ गई है। अब y के लिए y इक्वल है ए y का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया जी 0, तो ऊपर बटे के ऊपर 0 और नीचे क्या? 11। 0 को जिस पे मर्जी डिवाइड करें 0 ही आता है। तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 0। यही वैल्यूज़ हमने x और y की फाइंड करनी थी। तो x क्या आ चुका? -1 और y क्या? 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको रिपीट करवाता चलूँ कि आपने इनको हल करने के लिए
पहले इक्वेशंस को सिंपल करना है और उसके बाद क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है। बड़ी आसानी के साथ इस तरह सवाल आपके हल हो जाते हैं और इस तरह एक नहीं दो तरह के सवाल हल हो जाते हैं और आपको यूनिट नंबर 1 को हल करने में भी मदद मिलती है। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट है। 3 + 4 आयोटा इसका स्क्वायर है -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इक्वल है x + वाई आयोटा के। तो हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। ये 3 है, इसका स्क्वायर बन जाएगा जी 9। उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिख दिया। साथ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब इनकी प्रोडक्ट है, जमा का 2 टाइम्स है, पहला मेंबर 3 है इंटू सेकंड मेंबर है 4 आयोटा। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा -2x। तो -2 माइनस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस प्लस 2y आयोटा 2y आयोटा। अब इस x और y को भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, -x हो गया और -y आयोटा इक्वल टू क्या 0 आ गया जी। अब तरतीब लगाते हैं, तो तरतीब से लिखेंगे माइनस का 2x और माइनस का x माइनस के 3x। इसके बाद देखते हैं जी y, तो ना पहले x सिमतल का आयोटा वाला, ये देखें 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 दा 6 6 4 दा 24 आयोटा। तो प्लस के 2y आयोटा माइनस का y आयोटा प्लस का y आयोटा आ गया, ये भी लिख दिया हमने। इसके बाद हमारे पास है जी प्लस का 2 3 दा 6 6 4 दा 24 प्लस के 24 आयोटा। अब प्लस 9 है और प्लस 16 है, ये आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया इक्वल टू 0। -3x इसी तरह ही लिखा जाएगा, प्लस का y आयोटा भी इसी तरह ही आएगा, प्लस के 24 आयोटा और प्लस 9 माइनस 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -16 इक्वल टू 0। अब ये फिर क्या आ गया, माइनस के 3x प्लस y आयोटा प्लस 24 आयोटा, और ये प्लस के 9 है माइनस के 16 है तो माइनस के 7 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इनको अलग-अलग करते हैं, लेकिन पहले 24 आयोटा और 7 को दूसरी तरफ ले चलें जी। तो -3x उसी तरह ही आ गया, माइनस के 3x प्लस के y आयोटा इक्वल हो गया,
ये जो प्लस का 24 आयोटा दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। पहले 7 जो माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस हुआ -24 आयोटा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे प्लस था। अब इनकी अलग अलग इक्वेशंस बना लेते हैं। -3x इक्वल है 7 की एक इक्वेशन हो गई। y आयोटा बराबर है -24 आयोटा के। तो पहले ये माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हम। 3x हो गया -7 के, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, इस तरह x हमारे पास आ गया -7/3। आगे आयोटा को दूसरी तरफ लेके चलें तो y बराबर है -24 आयोटा और इसके नीचे भी आयोटा। ये आयोटा से आयोटा कैंसल हो गया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -24 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप कहें कि पीछे क्रैमर रूल का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हमें क्रैमर रूल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि x और y की जो इक्वेशंस बनी है ना वो बड़ी सादा हैं, इसलिए हमने इनको डायरेक्ट हल करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो तरीका वो इस्तेमाल करते हैं जो आसान और सादा हो, उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ पाबंदी ना हो। चूँकि यहाँ x और y की कीमत के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, तो पहले दो पार्ट्स के लिए हमने उनकी इक्वेशंस बना के वहाँ क्रैमर रूल का इस्तेमाल किया। लेकिन पार्ट नंबर 3 के अंदर जो इक्वेशंस थी वो बहुत सादा आ गई, x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से मालूम होगी, इसलिए क्रैमर रूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये एक्सरसाइज लंबी एक्सरसाइज थी, इसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हुए। अब यूनिट नंबर 2 के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज रह गई, उसको भी बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि बहुत अहम क्वेश्चंस वहाँ मौजूद हैं। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।